Your company is Yeah, from Malaysia, right? Malaysian-based company. Plus, you're doing a remote job. yeah. I'm doing a 100% remote job. I'm working from India, Mumbai, and my company is located in Malaysia. बहुत सारे लोगों को होता है कि यार सैलरी रेंज क्या होती है एज अ फ्रेशर क्योंकि एंड हाँ. उसका थोड़ा तो नॉलेज रहना चाहिए, राइट? अगर कल को कोई आपको आके कोड दिखा दे, तो आपको एटलीस्ट कोड रीड करना आना चाहिए। देयर इज वन स्टीरियोटाइप इन मार्केट कि भाई लोग बोल रहे हैं कि एआई डेटा एनालिस्ट का या फिर डेटा साइंटिस्ट का जॉब खा लेगा. व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन इट, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट लर्निंग एआई थिंग. हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू हैव अ चैट विद आकाश बोला. अगर मैं आकाश के बारे में बात करूं तो ही इज द पर्सन who just graduated in 2025 and he is able to crack one big company. और वो काम करते हैं मलेशियन बेस एक कंपनी के लिए इन अ डेटा रोल. प्लस एज ही इज फ्रेशर, इट्स हीज फर्स्ट जॉब. और वो जॉब भी रिमोट जॉब है जहाँ पे वो मुंबई से जो है काम करते हैं एक मलेशियन बेस्ड कंपनी के लिए. एंड दिस स्टोरी विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड वेयर यू आर राइट नाउ एंड हाउ यू कैन प्लान योर करियर इन डेटा फील्ड. ओके. और सबसे बेस्ट चीज़ अबाउट आकाश इज कि उन्होंने जितनी भी चीज़ें पढ़ी है इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. ही हैज़ लर्न ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम यूट्यूब. रेज्यूमे में जो सर्टिफिकेट दिखा है वो भी सब फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेट्स है. All resources he is going to share in this video. So watch this video till the end and I hope you will be able to understand his journey and you will be adopt the things which he has done right in his career. So Akash, thank you first of all. Welcome to the Top 4 City YouTube channel. And this is my first podcast. I have done one podcast, but that was my podcast itself. So I was the guest on that podcast, but this is the first podcast on this channel. Our like we'll discuss about normal things. How was your journey? How was your preparation? क्योंकि बहुत सारे लोग तो अप्लाई करते हैं डेटा फील्ड के लिए, डेटा जॉब्स के लिए, बट दे आर नॉट एबल टू गेट इट. एंड आई एम ग्लैड यू आर एबल टू गेट इट. एंड उसी के बारे में हम बात करेंगे आज टोटल इन दिस इन डिटेल. So why don't you like introduce yourself, your name, your education background, and other things? Yeah. So thank you, Vishal, for having me, and thank you for replying my text on LinkedIn. Yeah. So I'm Akash Bola. I'm from Mumbai. I have recently completed my bachelor's in electronics and telecommunication engineering. So I actually come from a non-tech background, but today I'm working as a business intelligent executive at Summit Next. So like first of all तो how's your job going on? Like see, इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल मतलब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है अबाउट डेटा जॉब्स की. डेटा जॉब्स ऐसे है वैसे है. कुछ लोग पॉजिटिव वे में बताते हैं, कुछ लोग नेगेटिव वेज में बताते हैं. डेफिनेटली जिनके चैनल डेटा अराउंड है तो वो तो पॉजिटिवली ही बताएंगे. बट व्हाट्स योर ओपिनियन? Actually, इट इज़ अ गुड फील्ड अगर आपको इंटरेस्ट रहेगा डेटा में, तो इट इज़ वेरी गुड. बट सम पीपल थिंक डेटा एनालिसिस इज़ वेरी इजी. लगता रहेगा इजी, बट व्हेन यू गेट द रियल डेटा while you're working, वो अलग challenges के साथ आता है. And I have started my job in this month only. On 4th, I joined. इसके पहले I was business intelligent in intern at the same company for 3 months. So basically, you started your journey as an intern and then you got full time. Your company is Yeah, from Malaysia, right? Malaysian-based company. Plus, you're doing a remote job. yeah. I'm doing a 100% remote job. I'm working from India, Mumbai, and my company is located in Malaysia. Basically, Akash, this is a dream job for multiple people because first of all, you're working for some international company. Number second, your job is around data, and number third, it's a remote Yeah. job. The dream come true job for multiple people. And yeah, it's a good job you are like working for first of all, and it's a uh, best thing because I think you're 2025 pass out, right? You just pass out or what? You completed your. I just graduated. Yes, in May 2025. So I'm very excited, first of all, to learn about your journey because it's very difficult. First of all, you just pass out of your college and you started the job, which is first of all a data job. Number second, it's a remote job, and you're working for an international firm. So it's very good. First of all, it's like
99% of people want this kind of job in data analytics. Okay, so my Yes. first question is as you are passed out from the college in 2025 itself, I am assuming in April May around, right? So when did you started your first internship and what was the process? How did you apply for it? So yeah, I started preparing for interviews in my sixth semester, in my ending of sixth semester. I completed the course from your channel, data analytics course. I completed Hmm. all the projects from your playlist. I featured the Ola project in my resume along with the another project I created separately to show my variety. Then I started applying jobs on LinkedIn, Indeed, and everywhere else. एंड बट मेरे कॉलेजेस में जितने भी कंपनीज आ रहे थे मोस्टली डेटा फील्ड के लिए नहीं आ रहे थे. सो एज आई लर्न डेटा एनालिसिस, मैंने पावर बीआई सीखा, एसक्यूएल सीखा. तो मुझे ऐसा चाहिए था कि अभी मेरे को डेटा फील्ड में जॉब चाहिए. तो Right. देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग ऑफ कैंपस. देन इन द एंड ऑफ मंथ मार्च, आई गेस, या मार्च के एंड में मुझे लिंक्डइन से एक समिट नेक्स्ट के लिए मैंने अप्लाई किया था इंटर्नशिप के लिए. Got it. सो उसके बाद मेरे को एप्टीट्यूड हुआ. देन आई क्रैक द इंटरव्यू. और इंटरव्यू को मेरे डैशबोर्ड अच्छे लगे, मोस्टली वो ओला प्रोजेक्ट वाला, उसका डिज़ाइन वगैरह. देन आई गॉट द इंटर्नशिप ऑफ 3 months. देन दे प्रॉमिस दैट इफ यू परफॉर्म वेल वी विल प्रोवाइड यू जॉब एज वेल. Got it. एंड हियर आई एम. Nice, nice, nice. So, see, lots of people will do. See, I want to tell you that Ola project video is having almost 1 lakh views right now, and it's not necessary that everyone will get job on the basis of that project or something, right? Can you tell me the number? How many projects you had in your resume, and ideally कितने होने चाहिए एक resume में? मेरे रिज्यूमे में तो सिर्फ दो ही प्रोजेक्ट्स है. कौन से और आइडियली एक तो वो ओला वाला, राइट? या और एक मैंने अलग से किया था, वो था amazon प्राइम वीडियो एनालिटिक्स. उसमें वो गॉट सब जॉनरा ये सब करना, उसमें मैंने डैशबोर्ड भी बनाया और एसक्यूएल क्वेरी से वो टेबल भी बनाया. और अगर आपको चाहिए तो आप 3 प्रोजेक्ट्स रख सकते हो जिसमें एसक्यूएल और पावर बीआई दोनों यूज हुआ है, जिसमें सिर्फ एसक्यूएल यूज किया है और जिसमें सिर्फ विजुअलाइजेशन यूज किया है. अगर आप टेक्निकल के लिए जा रहे हो तो यू शुड इंटीग्रेट पाइथन एज वेल. So usually 3 projects are enough. प्लस कुछ या सर्टिफिकेशंस या होने चाहिए, जैसे आपने 2 सर्टिफिकेशन किए हैं, राइट? वन इज फ्रॉम हम्म. माइक्रोसॉफ्ट एंड सेकंड वन इज योर एसक्यूएल फॉर एवरीवन समथिंग इज देयर, लाइक फ्रॉम कोर्सेरा, पाइथन नो और नो, एसक्यूएल. पाइथन वाला मैंने कोर्सेरा से किया था और एक मैंने पावर बीआई का किया था, वो माइक्रोसॉफ्ट से किया था. करेक्ट. परफॉर्मेंस एनालिटिक्स इन पावर बीआई. गॉट इट. सो दिस विल बी योर समरी, और फालतू चीजें मेंशन करने की जरूरत नहीं है. नोबडी केयर्स अबाउट योर हॉबीज. आई थिंक या पीपल या आर लाइक writing more and more achievements. So I think they are focusing on your skill sets, your certifications, and your project. या Okay, प्रोजेक्ट को जितना हो सके उतना डिटेल में एक्सप्लेन करो, correct. ताकि उनको भी लगे. और आपने जो एक वीडियो दिखाया था उसमें आपने 4 पॉइंट्स मेंशन किए थे, तो चाहिए तो वो वीडियो का लिंक डाल दो यहाँ की तरफ. Right, sure. Also, can you share your resume? I'll hide everything and I'll show your resume how that resume looks like. तो लोग भी थोड़ा इंस्पिरेशन ले सके उस resume से, and they'll try to replicate your resume. या श्योर श्योर. एक्चुअली मैंने ओवरलीफ से अपना रिज्यूमे बनाया था क्योंकि किससे? उसका लेआउट. ओवरलीफ ओवरलीफ. Overleaf. Okay. Yeah. तो मैं दे दूंगा आपको मेरा रिज्यूमे. Share your resume. I'll hide your name and everything. तो या हाउ मेनी कंपनीज मीन्स ये जॉब्स नेक्स्ट समिट नेक्स्ट, राइट? यस, ये समिट नेक्स्ट टेक्नोलॉजीज. समिट नेक्स्ट टेक्नोलॉजी को अप्लाई करने से पहले कितने कंपनीज में अप्लाई किया था आउटसाइड, और जॉब्स को किया था या सिर्फ इंटर्नशिप ही टारगेट था स्टार्टिंग में? एक्चुअली कॉलेज में मोस्टली तो जॉब के अपॉर्चुनिटीज ही आ रहे थे.
बट जितने भी आ रहे थे वो सब सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर के आ रहे थे, जो मतलब राइट। जिनके लिए पूरा कोडिंग चाहिए, और मेरे को उतना कोडिंग आता नहीं है टू बी ऑनेस्ट। और बाकी डेटा एनालिसिस के लिए दो तीन कंपनीज आए थे, बट मैं शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ था। राइट। देन उसके बाद ऑफ कैंपस जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ओपनिंग नहीं था वो टाइम पे। सब लोग बोल रहे थे कि अगस्त वगैरह में ओपनिंग आएगा तो ट्राई इंटर्नशिप। तो मैंने फिर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना ट्राई किया। देन आई गॉट द इंटर्नशिप। आई या गॉट द सो इंटर्नशिप फ्रॉम द बेसिकली, लिंक्डइन ओनली। या सो मैं भी जितने लोगों को बताता हूँ ऑन चैनल और एनीवेयर, आई I asked them to do internship first, at least a 3 month internship, whether it's a paid or a free internship, do it, and then eventually you'll get and the job. Because जब भी आप अप्लाई करते हो ना, लेट्स से कि कोई जॉब पोजीशन आई है तो उसके लिए आप अप्लाई करते हो तो 100 लोग और भी अप्लाई करेंगे। अब उसमें से अगर किसी ने एग्जैक्टली। इंटर्नशिप की है तो आप तो वैसे ही बाहर हो जाओगे उस राउंड से, राइट? सो दैट्स व्हाई आई एनकरेज पीपल टू डू इंटर्नशिप, 3 to 6 मंथ इंटर्नशिप। और अगर आपका लक अच्छा रहा, जैसे कि आपके केस में भी वही हुआ, मेरे केस में भी वही या हुआ, मैंने इंटर्नशिप की और मुझे मेरा जॉब कन्वर्ट हो गया। सो मुझे उन्होंने बोला था कि 3 मंथ के लिए आप इंटर्नशिप कर लो, बट उन्होंने मुझे 1 मंथ में ही ऑफर लेटर दे दिया। एंड दैट वाज द लाइक बेस्ट थिंग ऑफ माय लाइफ। सो वहां से ही मैंने सीखा है कि यू शुड स्टार्ट समवेयर, जो इजी थिंग है, और उसके बाद में इवेंचुअली यू विल गेट द जॉब। एंड आई थिंक यू फॉलो दैट थिंग, दैट्स व्हाई यू गेट द जॉब दैट इजीली, राइट? ना अदरवाइज इट्स यस नॉट इजी यस टू गेट अ जॉब। यस सो यस, एक्चुअली मैंने डायरेक्ट जॉब पोजीशंस के लिए भी अप्लाई किया था, बट उसमें बहुत क्राइटेरिया था, और करेक्ट। बिना इंटर्नशिप के मेरे को उतना कुछ समझता भी नहीं है एक्चुअली। अगर इंटर्नशिप पेड में मिले या अनपेड भी मिले, आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा ना, वो काम आएगा आपके परमानेंट जॉब रोल। राइट। सो इंटर्नशिप तो मैं, मेरे मतलब पहले स्टार्टिंग से ही मैं ऐसे ही लेता हूँ कि इंटर्नशिप इज अ लर्निंग पीरियड, राइट? आप यस वो ले यस। लो और उसको यूज करो आपके रिज्यूमे में। मतलब इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आप अगर कोई भी कोर्स लेने जाते हो डेटा एनालिसिस सीखने के लिए बाहर, तो यू आर पेइंग देम, राइट? बट जब आप इंटर्नशिप के लिए जाते हो, आप वही चीज प्रैक्टिकल में सीख रहे हो, तो व्हाई डोंट यू जॉइन दैट इंटर्नशिप, वेदर इट्स पेड और फ्री, राइट? सो यू शुड गो फॉर इट। या सबको बोलता हूँ ये चीज, एंड आई हैव एन एग्जांपल राइट नाउ विद मी कि भाई मैंने ये किया है, आप भी यही चीज करो, एंड लाइक यू विल गेट जॉब। ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइक लिंक्डइन, कौन से और प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपने ट्राई किया है इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने का? इंडीड पे भी ट्राई किया था मैंने, और कोई कोई कंपनीज के वेबसाइट पे डायरेक्ट इंटर्नशिप के ये पोस्ट और नोटिफिकेशंस आते थे, तो फिर मैं वहां भी अप्लाई करता था। यू बट गेट योर थ्रू? मोस्टली तो मोस्टली तो मैं लिंक्डइन पे अप्लाई करता था। नाइस। ओके। सो कैन यू टेल मी इट्स लाइक व्हाट वाज योर स्ट्रक्चर ऑफ रिज्यूमे? कि एक रिज्यूमे होता है जिसमें आप स्टार्ट करते हो आपकी इंफॉर्मेशन से, उसके बाद में आपने क्या क्या चीज मिल चुकी है, और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, हैव यू डन एनी पेड कोर्स और कहीं से क्लासेस लिए है, कुछ किया है? No, nothing. I have invested ₹0। ऑल थैंक्स टू यू। मैंने आपके चैनल से पूरा डेटा एनालिसिस सीखा। आपके चैनल के पहले मुझे पावर बीआई क्या होता था वो भी नहीं पता था, डैशबोर्ड्स क्या होते थे वो भी नहीं पता थे। आपके चैनल से मैंने सब सीखा। एंड वन ऑफ माय फ्रेंड इज अ डेटा साइंटिस्ट, और अगर मुझे कुछ डाउट्स रहते थे तो मैं उसके पास जाता था। एंड आपका प्लेलिस्ट खत्म करने के बाद रेज्यूमे में मैं डायरेक्टली तो नहीं लिख सकता ना कि आई हैव कंप्लीटेड डेटा एनालिसिस थ्रू यूट्यूब। तो लिंक्डइन राइट। लर्निंग आपने सजेस्ट किया था एक्चुअली, कि लिंक्डइन लर्निंग पे फ्री सर्टिफिकेशन कोर्सेस है, वो कर लो। आपका कोर्स खत्म होने के बाद वहां जाके मैंने एग्जाम दिया। आई क्रैक्ड इट, आई गॉट द सर्टिफिकेट विच वाज फ्रॉम लिंक्डइन एंड माइक्रोसॉफ्ट बोथ। वो मैंने अपने रिज्यूमे में डाला। गॉट इट। एंड देन मैंने अपने प्रोजेक्ट्स डाले रिज्यूमे में, अपने सर्टिफिकेशंस डाले। या दैट्स ऑल। डू यू थिंक दिस फ्री सर्टिफिकेशन थिंग वर्क really well, or like it's just kind of scam? आई गेस इट वर्क्स बिकॉज इट वर्क फॉर मी। Okay. बिकॉज आपको लगता रहेगा कि ये सर्टिफिकेट कुछ काम के नहीं आएंगे, बट Right. अगर आपके पास कोई स्किल है उसको शोकेस करने के लिए, या तो प्रोजेक्ट रहना चाहिए आपके पास खुद का, या तो कोई सर्टिफिकेशन रहना चाहिए जो स्टैंड आउट करे। बिकॉज एज यू सजेस्टेड दिस, ये लिंक्डइन और माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से था, तो ये तो ऑब्वियसली स्टैंड आउट करना ही था इसको। Correct. Yeah.
So I encourage people to, like, whether you want to start your data analytics journey, just go through YouTube first. YouTube पे जितना भी मटेरियल है वो देख लो एक बार, और उसके बाद Yeah. में if you are not getting any calls or interview opportunities, whether it's from internship or job opportunities, you can go for paid course, but पहले start from your like YouTube at least, क्योंकि YouTube पे बहुत सारे लोग हैं. I'm not talking about myself. There are lots of creators who are working in Google, Microsoft and other companies, and they're creating a good content. मैं भी जितना भी पढ़ा हूँ like from YouTube only. And recently अब मैंने कुछ पेड कोर्सेज लेना स्टार्ट किया बिकॉज राइट नाउ आई एम अर्निंग. ओके. और कुछ ऐसा Yeah, yeah, कंटेंट होता है जो शायद आपको फ्री में यूट्यूब पे ना मिले, सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग फॉर पेड थिंग. अदरवाइज तो exactly. मैंने जो चीजें सीखी है इट्स फ्रॉम फ्री सोर्सेज ओनली. एंड आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि आपको देख के भी बहुत सारे लोग ये करेंगे कि यार जरूरी नहीं है आपको पेड कोर्सेज के लिए ही जाना. यू कैन गो फॉर फ्री कोर्सेज ऑल्सो, यू Exactly. कैन फ्रॉम यूट्यूब ऑल्सो. ओके. सो हाउ डिड यू अगर आपको शोकेस एकदम या कंटिन्यू कंटिन्यू. अगर आपको एकदम एडवांस में सीखना है तो यू हैव टू पे फॉर एनी कोर्स, राइट? Yeah, right, right. बिकॉज But अगर आपको अभी एआई इंटीग्रेशन सीखना है डेटा एनालिसिस में, बिजनेस इंटेलिजेंस में, तो वो तो यूट्यूब में उतना अच्छे से सिखाएंगे नहीं. तो उसके लिए तो पेड कोर्स ही आई प्रेफर. yeah, अगर right, आप right. अर्न कर रहे हो तो यू शुड ऑब्वियसली स्किल अप योरसेल्फ. Correct. Yeah, correct. So basically like यूट्यूब पे है बहुत सारी चीजें, बट बहुत सारे लोगों को होता है ना सेल्फ लर्निंग या फिर सेल्फ लर्निंग में सब चीजें लाइक आपको समराइज करनी पड़ती है, आपको चूज करना पड़ता है कि किससे पढ़ना है किससे नहीं. वो लोग नहीं कर पाते, राइट. तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम्म. वी शुड गो फॉर पेड, बट हाँ, बट एटलीस्ट यू शुड ट्राई फ्री रिसोर्सेज फर्स्ट एंड देन गो फॉर पेड. या अगर आपको फ्री में इंटरेस्ट लगा, अगर इफ यू थिंक दैट यू कैन डू दिस, देन यू कैन ट्राई पेड कोर्सेस. अगर आपने पहले पेड ले लिया और आपने कंटिन्यू नहीं किया, फिर क्या फायदा? करेक्ट. ऑल्सो आई वॉन्ट टू नो वन मोर थिंग. बहुत सारे लोगों को एक चीज प्रॉब्लम आती है कि प्रोजेक्ट को कैसे दिखाना है उनके रेज्यूमे में. बिकॉज प्रोजेक्ट ऐसी चीज है ना, यू कैन नॉट लाइक राइट इन अ वन लाइनर कि भाई मैंने ओला का एक डैशबोर्ड बना हम्म. दिया और उसकी ये चीजें हैं. सो हाउ यू आर लाइक एक्सप्लेनिंग योर प्रोजेक्ट इन योर रेज्यूमे. हाँ, एक्चुअली आपके यूट्यूब में एक आपने वीडियो डाला था कि हाउ टू शोकेस योर प्रोजेक्ट. आपने ओके. कुछ 4 पॉइंट्स दिए थे जो डायरेक्ट जीपीटी में डालो वो, और आपका प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करो, और वो खुद रिफ्रेम करके दे देगा. सो आई जस्ट कॉपी पेस्टेड दैट इन माय रेज्यूमे. गॉट इट. हाँ, करेक्ट है, क्योंकि यू शुड नो हाउ टू यूज एआई, क्योंकि हर एक चीज आप मन से करना इज नॉट वर्थ इट, बिकॉज आपके पास पहले तो टाइम नहीं है. एंड यू आर अ एग्जैक्टली. डेटा एनालिस्ट पर्सन, यू आर नॉट लाइक अ कॉपी राइटर कि आपको पता है कि कैसे कॉपी लिखना है अच्छे से, आपका रिज्यूमे कैसे लिखना है. इट्स फाइन, यू कैन यूज चैट जीपीटी एंड अदर टूल्स, वो बने ही हमारे लिए है. एंड आई थिंक दैट इज द एग्जैक्टली. गुड थिंग दैट यू हैव डन कि प्रोजेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया, क्योंकि फ्रेशर्स के लिए मैं एक चीज मानता हूँ कि आपके सर्टिफिकेशन आपके प्रोजेक्ट ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं दिखा सकते हो. या एग्जैक्टली. हाउ मेनी सर्टिफिकेशंस यू हैव डन बाय द वे? You have done only one, that data analyst certificate. I think नो it's नो. a आई data analyst essential by Microsoft and LinkedIn. Yeah, it was from Microsoft and LinkedIn. I have done another certification from Coursera, which was free, Okay. Python for everybody. And 4Age में जॉब सिमुलेशंस के कुछ चल रहे थे बीच में, तो वहां भी मैंने डेटा एनालिस्ट का किया था. वो एक्सेंचर का था. Okay. So I have the one video on 4H. तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये वर्थ इट नहीं है, मतलब ये कुछ काम का नहीं है, इट्स ओनली जॉब सिमुलेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा थिंग. बट आई थिंक अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास कोई इंटर्नशिप नहीं है, कुछ नहीं, देन आई थिंक एग्जैक्टली, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट? नथिंग. राइट, राइट. Okay, now you talked about Coursera. तो Coursera अभी free courses नहीं दे रहा है. Coursera close, I think they are charging something. So you can go for Skill Up by Simplilearn, जहाँ पे आपको data analyst के और बाकी चीजें भी free में मिल जाती है. I already created a video on it, so you can go and check it out. क्योंकि एक वीडियो था जो आप बात बोल रहे हो ना कि मैंने बताया था कि you should go for those courses, उसमें मैंने Coursera के भी बहुत courses बताए थे. Now people are abusing me कि ये free courses नहीं है. So recently they नहीं नहीं, stopped वो giving टाइम पे free. थे ना. हाँ, उस टाइम पे था. सो आई थिंक दैट वाज गूगल अ प्रॉब्लम. एनालिटिक्स के कोर्स, या राइट? या राइट. आपने ही बोले थे, हाँ हाँ. करेक्ट, करेक्ट. नाउ यू नीड टू पे सम 2000 3000 रुपीस. बट हाँ, लोगों को नहीं करना है क्योंकि फ्री में अवेलेबल है बहुत सारी जगह, सो दे कैन गो. एग्जैक्टली.
Okay, so this was your like journey about your internship and everything. बाकी how was your internship experience? क्या उसमें मतलब एक ये होता है ना कि भाई इंटर्नशिप तो मिल गई बट उसको कन्वर्ट भी करना होता है फुल टाइम जॉब में. सो व्हाट वाज योर लाइक प्रैक्टिसेस, गुड प्रैक्टिसेस जो आपने की है टू अंडरस्टैंड कंपनी और टू अंडरस्टैंड योर वर्क जॉब रोल, और उसको फिर कैसे कन्वर्ट किया, मींस व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स? एक्चुअली स्टार्टिंग में तो आई वाज सो नर्वस बिकॉज ये पूरा रिमोट जॉब है और आई ओनली मीट पीपल वर्चुअली, राइट? तो करेक्ट करेक्ट. उतना कुछ समझता नहीं था स्टार्टिंग में. एंड माय मैनेजर, माय मेंटर, शी हेल्प्ड मी अ लॉट टू क्रैक दिस जॉब. I used to work on dashboards, financial dashboards. I learned many financial terms. मेरे को पता भी नहीं था कुछ मोस्टली. मेरे को नॉर्मल डैशबोर्ड्स बनाने आते थे, बट आई लर्न हाउ टू मेक फाइनेंशियल डैशबोर्ड्स एंड रिपोर्ट्स. Then I have handled a large amount of data in Excel. Yeah, and after 3 months, I had another interview, like call we can say. Then I got this job. Yeah, nice. Okay, so main question, like lots of people are preparing for this data analyst job role. I have also done that thing, and now we are working on this in this field. बहुत सारे लोगों को होता है कि यार सैलरी रेंज क्या होती है एज अ फ्रेशर. I don't want you to expose your salary because it's terms and condition that you cannot expose your salary. But what is the normal range that any fresher can expect? 4.5 to 5 LPA दैट इज लाइक मिनिमम. मैं तो ये मिनिमम. वो बोलता हूँ कि 4 के नीचे तो मिलता ही नहीं है. हार्डली जेन जितना नहीं मैंने नहीं, देखा डेटा है. फील्ड में. हाँ, एग्जैक्टली. या, सो आई थिंक यू कैन एक्सपेक्ट बिटवीन 4 to 5 lakhs पर एनम. या. यप. करेक्ट. या, और अगर रिमोट जॉब है तो बहुत अच्छी बात है. देन यू डोंट नीड टू स्पेंड मोर मनी ऑन योर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एंड अदर थिंग्स. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, यस यस. नाइस नाइस. सो what's your plan now? Now you are working as a business intelligence executive, right? एग्जीक्यूटिव. या. Yeah, it's a kind of data analytic role only, but there are यस. multiple roles into that thing also. I think you are डेटा mostly फील्ड. working on Power BI and other things, right? या, आई एम मोस्टली वर्किंग ऑन पावर BI. Correct, correct. Business intelligence. So यस. yeah, it's a good role. Actually, I am planning for my business analyst journey. तो मैंने मेरी जो जर्नी स्टार्ट की थी उसके बाद मैं मार्केटिंग में थोड़ा बहुत काम किया हुआ एज एनालिस्ट, मार्केटिंग एनालिस्ट. और फिर मुझे है ना एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मुझे ज़्यादा टेक रोल में नहीं जाना. इट्स लाइक आई डोंट वांट टू प्ले विद पाइथन एंड एसक्यूएल. डेफिनेटली या, जितना आना सेम. चाहिए उतना आना चाहिए. बट आई वांट टू गो फॉर विजुअलाइजेशन रोल जिसमें एनालिसिस आपका ज़रूरी हो, जिसमें रिपोर्ट मेकिंग ज़रूरी हो, जो फाइनल डिसीजन मेकिंग वाली चीज है मुझे उस तरफ जाना है. सो हम्म. व्हाट्स काइंड ऑफ रोल यू आर लुकिंग फॉर, क्योंकि बहुत सारे लोग ना डेटा एनालिटिक्स बनने के बाद दिल स्विच टू डेटा साइंस और एआई मशीन लर्निंग के लिए चल जाएंगे, या फिर कुछ लोग डेटा एनालिस्ट ही प्रेफर करेंगे. और मैंने जैसे किया है, मैं बिजनेस एनालिस्ट के लिए गया हूँ. सो व्हाट्स योर लाइक रोल, व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इन योर फ्यूचर जिसके लिए आप अपस्किल करोगे आपसे? Actually, now I want to integrate AI in my daily workflow, so tasks can be done faster and more efficiently. In that way, I can save time and be more productive. Actually, in today's life, uh, सबको AI यूज करने आना चाहिए करेक्ट आपके कामों में, राइट. बिकॉज अभी वो यूज करके with the help of AI, if you can do it better, so why not, right? करेक्ट. So mostly it depends on you. If you are good in visuals, go for business intelligence, and if you are good technically, go for data science. Yeah. सो देर इज वन स्टीरियोटाइप इन मार्केट कि भाई लोग बोल रहे हैं कि एआई डेटा एनालिस्ट का या फिर डेटा साइंटिस्ट का जॉब खा लेगा. व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन इट, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट लर्निंग एआई थिंग? So in my opinion, in my point of view, the person who know how to use AI will replace the person who don't know how to use the AI. AI will not replace the job, करेक्ट. ऑब्वियसली, बिकॉज एआई को हम जो प्रॉम्प्ट देंगे वो वही करेगा. वो अपने आप से तो कुछ करके देगा नहीं, राइट? या नाउ श्योर. यू आर टॉकिंग अबाउट एआई.
नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट हम्म एआई, तो एआई के कुछ टूल आप यूज करते हो अभी टू बी अ प्रोडक्टिव पर्सन, टू कि आपके काम जो है बहुत फास्ट है, और शायद कई जगह आप अटक भी जाओ बिकॉज यू जस्ट स्टार्टेड। आर यू यूजिंग एनी टूल और समथिंग? या एक्चुअली आई यूज चैट जीपीटी। चैट जीपीटी तो बहुत नॉर्मल है आजकल। एंड आई यूज ए आई टूल कॉल्ड मानुस, जो आपको एक वेब पेज बना के दे सकता है पूरा, अगर आपने सही प्रॉम्प्ट दिया तो। एंड आई यूज क्लाउड ए आई। एंड एक्चुअली आई फील्ड, और शायद मैं कोई कोर्स भी कर लूंगा इसमें, पेड वाला। हाँ, मेक सेंस, मेक सेंस। मैं भी। एक्चुअली मैंने उसी के लिए आपको टेक्स्ट किया था लिंक्डइन पे कि मेरा ये हो गया है, तो आगे मैं क्या करूँ, आप मेरे को थोड़ा गाइडेंस दे दो। और आपने पॉडकास्ट तो सुना लिया। सो मैं अगर मेरे बारे में बात करूँ तो आई एम तो प्लानिंग बिजनेस एनालिस्ट जर्नी, क्योंकि अभी मुझे ऑलमोस्ट 3.5 years हो चुके हैं। I'll I'll complete my 4 years at the end of this year. So I will try to like look at something which is related to analysis, but it will be directly impacted to business. क्योंकि मेरे जो रोल रहे हैं वो ग्रोथ के रोल रहे हैं। ग्रोथ इन द सेंस नंबर एनालाइज करो, उसके बाद में कहाँ से क्या आ रहा है, हम्म। कौन सी जो मेट्रिक है वो बिजनेस को अफेक्ट करी है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू और अदर थिंग्स। तो मैं रेवेन्यू। उसी में जाना चाहता हूँ। या एंड आई थिंक इट्स बेस्ट इफ यू डोंट वांट टू गो फॉर टेक्निकल स्टफ, कि अगर आपको या ज़्यादा इसमें जाना नहीं है, कि ज़्यादा एसक्यूएल सीखना नहीं है, ज़्यादा एसक्यूएल में कोडिंग करना ज़्यादा पसंद नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, तो इट्स ऑब्वियस कि वी डोंट वांट टू कोड एंड अदर थिंग्स। एंड अगर आप उस एरिया में भी जाते हो ना, तो फिर थोड़ा कंपटीशन मिलना, ग्रोथ, और उसके बाद में जितना भी आपका प्रमोशन विमोशन होता है वो थोड़ा अफेक्ट करेगा, बिकॉज यू आर नॉट ओरिजिनली फ्रॉम दैट फील्ड, because या your एग्जैक्टली। analytics because your analytics and visualization skills are good, then you can go for that stuff. But obviously it's totally like when you start working on something, तो आपको ऑटोमेटिकली रियलाइज हो जाता है कि ये चीज हमें करनी है नहीं करनी। या एग्जैक्टली। सो वांट टू नो अबाउट कि हाउ मेनी स्किल्स यू आर लर्न, बिकॉज जो हम डेटा एनालिटिक्स में इन जनरल बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई, हम्म। टैबल्यू ऑन एंड योर पाइथन। तो ये 5 स्किल है, इसमें से या आप पावर बीआई या फिर टैबल्यू उसमें से एक सीख सकते हो, 4 तो इसेंशियल स्किल्स है। सो हाउ मेनी स्किल्स यू आर हाँ हैविंग? और इसमें ऐसा कुछ था कि भाई मैंने जो है एसक्यूएल और एक्सेल पे ही ज्यादा फोकस किया और पावर बीआई और पाइथन पे नहीं किया, ऐसा कुछ था कि इस पे बहुत अच्छा था मैं, इसलिए मेरा ये चीज बहुत स्ट्रांग है और इसके बेसिस पे ही मुझे जॉब मिला, ऐसा कुछ है? हाँ, एक्चुअली मैंने पाइथन पे उतना ध्यान नहीं दिया, और ओके। एसक्यूएल भी उतना मेरे को लगा नहीं। मैंने मेरे को विजुअलाइजेशंस अच्छे लगते थे, तो मैंने पावर बीआई पूरा सीखा। और एक्सेल तो आजकल एक्सेल तो सबको ही सीखना चाहिए, बिकॉज वो हर फील्ड में लगता है। और मैंने एक्सेल सीखा डेटा क्लीनिंग, ईडीए वगैरह के लिए। देन आई स्टार्टेड लर्निंग पावर बीआई। और या ये दो में मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने ये दो में ही ज़्यादा ये किया, रिसर्च किया और सीखा। ओके, बाकी जो एक फॉर्मेलिटी के लिए किया होगा बाकी चीजें, राइट? हम्म। बाकी सब हम्म। जो है। क्योंकि एंड हाँ, उसका थोड़ा तो नॉलेज रहना चाहिए, राइट? अगर कल को कोई आपको आके कोड दिखा दे, तो आपको एटलीस्ट कोड रीड करना आना चाहिए। और राइट, आजकल मोस्टली तो वाइब कोडिंग ही चल रहा है, राइट। कि सब एआई करके देगा। करेक्ट, करेक्ट। हाँ, इट मेक्स सेंस। समटाइम्स आई आल्सो इफ आई एम गेटिंग स्टक बिकॉज आई डोंट नो ईच एंड एवरी फार्मूला, राइट? एक्सेल में भी या बहुत फार्मूलाज है। सो आई आस्क चैटजीपीटी, सिंपल। सो आई विल नॉट लाइक लर्न ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, क्योंकि जो शायद आपको चीजें हर रोज डेली लाइफ में लगती है आपको आती ही है, राइट? जो चीज हम्म। आपको साल में एक बार लग रही है तो डेफिनेटली यू यूज एआई इनटू इट। एआई। अच्छा, ये इंटर्नशिप का तो इट्स लाइक आई थिंक क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट योर इंटर्नशिप, योर जर्नी अबाउट everything. Let's say if somebody is starting his career, maybe he's past just pass out in from his college after graduation, maybe take non-tech, as you are from non-tech, so I'll expect you to like uh, summarize everything in terms of like non-tech student.
सो अगर कोई एक स्टूडेंट है जो अभी पास आउट हुआ है या फिर हो रहा है एंड ही इज प्लानिंग about to become a data analyst, what will be his ideal roadmap? आई सजेस्ट जस्ट स्टार्ट। आप पहले ही एडवांस सीखने के लिए मत जाओ। स्टार्ट विद द बेसिक। एंड जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था कि डेटा एनालिसिस बहुत लोगों को लगता है कि इट इज़ वेरी इजी, बट जब रियल लाइफ में डेटा आता है तो उसमें बहुत चैलेंजेस आप फेस करोगे। Correct. और जब आप ज़्यादा बड़े डेटा के साथ भी बैठोगे ना तो आपको लगेगा कि नहीं ये एक दिन में ख़त्म हो जाता है, बट नहीं, एक दिन से भी ज़्यादा लग सकता है। सो स्टार्ट करो बेसिक से। आई सजेस्ट कि यूट्यूब से स्टार्ट करो। आपके प्लेलिस्ट से करेगा ना कोई, हो जाएगा आराम से, क्योंकि उसमें बहुत फ्रेंडली सिखाया है। पहले एक्सेल, फिर एसक्यूएल, पाइथन तो लास्ट में सिखाया था, फिर पावर बीआई। और पावर बीआई में भी आपने दो दो या तीन से चार प्रोजेक्ट करवाए थे। एक विजुअलाइजेशन था, सिर्फ एक एसक्यूएल के साथ विजुअलाइजेशन था, एक एक्सेल के साथ था। या उसके बाद फिर अगर आपको लगता है कि आपको कोई पेड कोर्स करना चाहिए जिसका सर्टिफिकेशन वो रेज्यूमे में स्टैंड आउट करे, तो आई सजेस्ट कि वो लिंक्डइन लर्निंग का ही कर लो, क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट और लिंक्डइन लर्निंग वाला Correct. है। या दैट्स ऑल। Nice. एंड आई शुड सजेस्ट यू टू स्टार्ट बिफोर योर ग्रेजुएशन, बिकॉज थोड़ा जल्दी कर लो। Yeah, right, right. Because preparation के लिए time हम्म, लगता है. बहुत Apart टाइम from लगता this, if anyone want to reach out to you about the queries, how can they reach out to you? On LinkedIn or something? है। या दे कैन रीच मी आउट ऑन लिंक्डइन। Okay, I'll add your LinkedIn ID into description. So if any श्योर questions श्योर। like, so if I want to summarize this whole podcast, you started your journey. You are a electronics engineer, right? Electrical and electronics engineer mix, or only इलेक्ट्रॉनिक्स electronics? एंड टेलीकम्युनिकेशन। Electronics and telecommunication engineer. Your pass out year is 2025. Okay, या then you'll learn four skills, which is your essential data analytics skills. After that you apply for internship, तो आपको internship मिली और उसके बाद में आपने उसको convert किया job में. And the best thing about like your job and you is, first you learn from free resources, didn't use any, you didn't spend any money on any course or any guidance or anything. Number second, you learn each and everything, almost everything from YouTube, और सिर्फ वो resume में दिखाने के लिए you have used your certifications, जो भी free certifications. And the या fourth thing and the best thing is your job, which is international company, Malaysian company, where you are working, and it's a remote job and it's a data job. So I think this is the या good thing about you. And मेरी भी जर्नी कुछ ऐसी ही रही है, सिमिलर, हमारी हेयर स्टाइल और स्पेक्स तो मैच कर ही रहे हैं, बट यार स्टोरी भी ऐसी है कुछ. आई जस्ट लाइक कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग इन 2020, देन आई वेंट थ्रू यूट्यूब एंड अदर थिंग्स, मैंने वहां से सीखा. आई वेंट फॉर इंटर्नशिप, इंटर्नशिप से फुल टाइम जॉब कन्वर्ट किया एंड आई लाइक सर्वाइव इन दिस फील्ड and I'm still working in the data field. So I think it's a pleasure to like speaking with you, talking about multiple things. This is my first podcast. I am also like, I don't know what to talk, what to ask. I am also like kind of nervous because this is my first podcast, and I think yeah, it's great experience to talking with you. Do you have any last या message? Any last message to like motivate people who are just starting their career or they are like getting rejected by multiple companies? रिजेक्ट तो होना ही है, बट यू कांट स्टॉप, राइट? यू हैव टू डू समथिंग अलग ताकि आप स्टैंड आउट कर सको। सो प्लीज अपडेट योर लिंक्डइन प्रोफाइल, अपडेट योर गिटहब प्रोफाइल, यू अपडेट योर रेज्यूमे। और अलग अलग प्रोफाइल्स के लिए अलग अलग रेज्यूमे बनाओ। अगर आप बिजनेस इंटेलिजेंस के तरफ के रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यू शुड मेंशन ओनली प्रोजेक्ट्स जिसमें आपने पावर बीआई ज़्यादा यूज़ किया है। और अगर आप डेटा एनालिस्ट के इसमें जा रहे हो तो यू शुड मेंशन एसक्यूएल, पाइथन, एक्सेल, पावर बीआई सब। आपने भी एक वीडियो में बोला था, राइट, कि सब रोल्स के लिए अलग अलग रेज्यूमे रखना चाहिए। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. मैं भी अभी भी अगर अप्लाई करता हूँ तो आई विल क्रिएट 3-4 रेज्यूमे, बिकॉज हर कंपनी की रिक्वायरमेंट सेम नहीं हो सकती है. मतलब एग्जैक्टली ऐसा तो एग्जैक्टली। कभी नहीं होगा कि जो आपको आता है वो 100% कंपनी पूछ रही है.
एग्जैक्टली। और Right. जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना चाहिए, बिना जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़े ही अप्लाई भी मत करो। Correct. और मेरा ये है कि शायद आप 100 जगह अप्लाई कर रहे होंगे जिसमें से आपको 5-6 टाइप्स ऑफ जॉब सेम दिखेंगे, मतलब अगर डेटा एनालिस्ट है तो 10-12 डेटा एनालिस्ट के दिखेंगे, फिर बिजनेस इंटेलिजेंस के कुछ दिखेंगे। तो उसके अराउंड अगर आप 5-6 रेज्यूमे अगर आप बना के रखते हो एंड यू कैन ड्रॉप योर पर्सनलाइज रेज्यूमे टू पर्सनलाइज जॉब, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा हाई चांसेस होते हैं कि या आपके select हो जाए। एग्जैक्टली। इट्स अ गुड टैक्टिक एक्चुअली। Okay, Akash, I think that's it from my side. I don't have any question right now, because I think you have answered each and everything, and your journey was fantastic. And the way you are like doing your job, because you started as an intern and now you are having full-time job, and everything you have learned from free of cost resources. So I think it's a great journey, and it will encourage people to go in this field and follow you for like whatever you had done for your work. Yeah. Thank you. Thank you या for या talking to our podcast, and thank you for giving your time. या थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच।